Good morning, students. Yesterday we started the chapter Motion. I hope that everybody has understood the concept of motion and rest. So, first of all, recall that what is motion when an object moves from one place to another with respect to some reference point, then it is called motion. मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन. This also you know these terms in the previous class also, that is uniform motion and non-uniform motion. So to understand the concept of uniform motion, let us take an example that on this roadside, a train is moving. This train is moving at the speed of 90 km per hour. What does it means? That suppose it is going to Delhi and the Delhi is at 250 km and it is moving that with the speed of 90 km per hour, means constantly it is moving with the same speed. In first hour it moves with the speed of 90 km per hour. In the next hour the speed is again 90 km per hour. In the next hour again the speed is 90 km per hour. Means time interval same और डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या है, सेम. तो जब टाइम इंटरवल सेम हो, डिस्टेंस कवर्ड सेम हो, तो हमारा जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म. कि इट इज़ मूविंग, दिस ट्रेन इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग विद द सेम स्पीड, दैट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर. हर आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? 90 किलोमीटर. मीन्स उसकी स्पीड जो है चेंज नहीं हो रही है. तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. So what will be the definition of uniform motion? Uniform motion, when a body covers equal distance in equal interval of time, the body is said to be in uniform motion. Means time remains same and distance remains same. You can take the another example. Suppose a car is moving at a speed of 25 meter per minute. पहले मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 25 मीटर. दूसरे मिनट में कितनी कवर करती है? 25. सो टाइम इज सेम, डिस्टेंस इज सेम. सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. So uniform motion is when a body covers equal distance in equal interval of time, then body is said to be in uniform motion. Plot a graph of uniform motion, the graph will come like this, a straight line. Just consider the dimensions. On this axis we take time in minutes and on this axis we are taking distance in meter. Suppose a car is moving in first minute. So first of all, for plotting the graph you have to make a table. जो भी आप जिसके बारे में डिस्टेंस और टाइम के बारे में ग्राफ अगर आप प्लॉट कर रहे हो तो आपको एक टेबल बनानी पड़ती है वैल्यूज़ की. तो आपने टेबल बनाई, टाइम को आपने लिया मिनट्स में और डिस्टेंस को आपने लिया मीटर्स में. कि एक कार पहले मिनट में 10 मीटर्स चल रही है, दूसरे मिनट में वो 20 मीटर पर पहुंच जाती है, तीसरे मिनट में वो 30 पर पहुंच जाती है, चौथे मिनट में उसकी डिस्टेंस कवर्ड 40 हो जाती है और फिफ्थ मिनट में उसकी डिस्टेंस कवर्ड 50 और सिक्स में उसकी क्या हो जाती है? 60. सो हाउ यू विल प्लॉट द ग्राफ? आपने एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया 1 2 3 4 5 6 minutes, and on the y axis you are taking the distance in meter, that is 10 20 30 40 50 60. तो आपने ग्राफ किया. When you are taking this first value 1 and 10, your point will be here.
When you are taking the value 2 and 20, your point will be there. So like this way, if you will plot the graph, the motion, uniform motion will come in a straight line. When the graph is in the straight line, that will represent uniform motion. Is non-uniform motion. Non-uniform motion क्या होता है? When a body covers unequal distance in equal interval of time. For example, एक कार है, मूव कर रही है, पीछे हमने जैसे एक एग्जाम्पल किया था, ट्रेन जो है 90 किलोमीटर्स पर आवर मूव कर रही है. सपोज़ ये कार मूव कर रही है 25 किलोमीटर पर आवर. अचानक दूसरी कार आगे आ जाती है, तो उसको क्या लगाना पड़ते हैं? ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं. तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से स्पीड कम हो गई, या खाली रोड मिल गई तो उसने स्पीड बढ़ा ली. मतलब कभी आप स्पीड कम कर रहे हो, कभी आप स्पीड बढ़ा रहे हो, टाइम के अकॉर्डिंग आपकी डिस्टेंस सेम नहीं है, तो वो मोशन क्या होता है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Non-uniform motion is when body covers unequal distance in equal interval of time. Means suppose you are going to the school. आप स्कूल जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हो, बड़ी मस्ती से धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए जा रहे हो. एकदम से देखा टाइम बहुत कम रह गया, तो आपने अपनी साइकिल चलाना तेज़ कर दिया. फिर लगा कि नहीं, मैं तो बहुत जल्दी हो गया. तो कभी आप तेज़ कर रहे हो, कभी आप स्लो कर रहे हो. मीन्स जब तुम्हारी स्पीड जो है सेम नहीं रहती है, मीन्स तुम टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करते हो, तो वो मोशन हमारा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन unequal distances is covered in equal interval of time. That motion is known as non-uniform motion. Understand the concept of non-uniform motion with another example. Like a car traveling to Delhi covers 40 km in 1 hour, and then due to huge traffic on road, it travels 25 km another hour, and then in another hour takes a break for having lunch, then speed up and travels 50 km in another hour. यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या किया था कि हर आवर में ट्रेन की स्पीड क्या थी? सेम. पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? ये नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का उल्टा होता है. नॉन यूनिफॉर्म में पहले आवर में कार ने ट्रैवल किया 40 किलोमीटर्स, दूसरे आवर में कार ने ट्रैवल किया 25 किलोमीटर्स, और थर्ड आवर में उसने क्या ट्रैवल किया, किस स्पीड से ट्रैवल किया? 50 किलोमीटर्स. मीन्स उसने हर आवर में उसकी स्पीड क्या थी? डिफरेंट थी. इट वॉज नॉट सेम. In the equal interval of time, the time was same 1 hour, and distance was different in every hour. So when a body covers unequal distance in equal interval of time, then we say the motion is non-uniform motion. We can see the graph between this. The graph between time and distance showing the curved line. When the graph is curved line, then the motion is non-uniform motion, and if graph is straight line, then what type motion it is? That is यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ क्या आता है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम रहते हैं. नॉन यूनिफॉर्म में टाइम कम हो सकता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, या डिस्टेंस कम हो सकती है, टाइम ज़्यादा लग सकता है. तो ग्राफ क्या आता है हमारा? कर्व्ड लाइन आता है. सो दिस इज़ अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Let us discuss about the concept of distance and displacement. All of you are familiar with the distance. Try to understand this distance. We discuss example. Consider a boy. This boy is going to the school, then from school going to the market. Like from home it goes to the school, then market,
then friend's house, and then return homes. Suppose this distance is 1 meter, this is again 1 meter, this is 1 meter, and this is 1 meter. He comes back at the home. So total distance covered is the path covered by him. 1 meter, 2 meter, 3 meter, or 4 meter. So distance traveled by that boy is how much? 4 meter. Now come to the concept of displacement. Let us understand about displacement. Consider an example. एक बॉय है, वो कहाँ रहता है? ए पर रहता है. कहाँ रहता है? ए पर. सी पर उसका एक फ्रेंड रहता है, ओल्ड फ्रेंड, और वो उसको साथ लेकर बी पर जाते हैं. दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं? बी पर, जहाँ उसका फ्रेंड जो है, दूसरा नया फ्रेंड क्या कर रहा है? अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर. ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 किलोमीटर. और सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 किलोमीटर. तो जो बॉय है वो अपने घर ए से चला, सी पर गया, सी से एक फ्रेंड और को लिया, और वो दोनों मिलकर कहाँ गए? बी पर. सो दिस बॉय स्टार्टेड फ्रॉम ए. जहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पर ख़त्म होता है, जहाँ पर रुकता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट. तो ए से पहले वो सी पे गया और फिर कहाँ गया? बी पर. तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? दैट इज़ 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर. कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? 3 किलोमीटर. उसने स्टार्ट किया था ए से, और वो फाइनली कहाँ पर है इस वक्त? बी पर. ए और बी के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है? 1.5 किलोमीटर. तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 1.5 किलोमीटर. डिस्टेंस हमारी होती है एक्चुअल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड final point. Let us take another example. See in this figure, suppose you start moving from here, you cover this path and you reach at this point. So distance is the actual path covered. आप जितना घूम के मर्जी जहाँ से आए वो आपकी क्या होती है? डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि आप यहाँ से चले थे और फाइनली आप कहाँ पहुँचे? यहाँ. तो शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट पाथ हम लेते हैं, वो हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट. सो डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन. टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन. हम ये नहीं देख रहे हम इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, जितना भी चल रहे हैं वो हमारी क्या है? डिस्टेंस. सो वी कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. In the scalar quantity, I explained you that the quantities which are represented by numbers only, they are known as scalar quantities. So that is distance is scalar quantity. हमें सिर्फ ये बताना होता है कि हम कितना पाथ कवर किया है, किस डायरेक्शन में कवर किया है, उससे कोई मतलब नहीं है. तो वो क्या हो गई? हमारी डिस्टेंस. तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ ट्रेवल्ड. इसकी यूनिट क्या है? मीटर.
Bigger unit क्या है? Kilometer, and further bigger is 1 kilometer. Everybody knows about this. That is equal to 1000 meter. The characteristics of distance means properties of distance. Distance cannot be zero. It can never be zero. अगर आपने चलना शुरू किया है, आपने मूवमेंट की है, आप मूव किया है, तो कोई ना कोई डिस्टेंस आपकी ज़रूर कवर हुई है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती. बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. If a body travels different path, then total distance is calculated by simply adding the magnitude of all the paths. Meaning कि तो जो भी कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस हम उसका मैग्नीट्यूड, हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सिंपल ऐड करके कैलकुलेट करते हैं. दैट इज़ डिस्टेंस. Displacement can be defined as the shortest route or path traveled by a body in a given direction. Means distance between initial point and final point, that is known as displacement. And distance is the actual path covered. आप किधर से घूम कर एक पॉइंट से चलकर पहुंच रहे हैं, वो क्या है? डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और शॉर्टेस्ट रूट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और साथ का साथ डायरेक्शन भी चाहिए. वो कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़. और स्केलर क्वांटिटीज़ विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ओनली, and which can be represented by direction as well as by number, means magnitude. They are known as vector quantities. I told you that distance cannot be zero, but displacement can be zero. How? I explained you with an example. Suppose कोई पर्सन यहाँ ए से चलना शुरू करता है, वो कहाँ जाता है? बी पर. और सपोज़ ये 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और फिर वापस कहाँ आ जाता है? 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ आ जाता है? ए पर वापस. तो इनिशियल पॉइंट भी ए हो गया और फाइनल पॉइंट भी ए हो गया. तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. उसने ए से ही चलना शुरू किया और ए पर ही आकर ख़त्म हो गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? ज़ीरो. और उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? वो पहले ए से बी तक गया 2 किलोमीटर्स, फिर वापस बी से ए तक आया 2 किलोमीटर, तो उसकी डिस्टेंस हो गई 4 किलोमीटर. सिंपल प्लस किया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स डिफरेंट पाथ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह से ऐड करते हैं? बाय एडिंग डिफरेंट वेक्टर्स. मीन्स वी टेकिंग द डायरेक्शन. सपोज दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ही इज रिटर्निंग बैक, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव +2 -2, तो रिजल्ट इज ज़ीरो. So displacement can be zero or distance cannot be zero. This is all about distance and displacement. Tomorrow we will do few numerical problems based upon this.